ایک سے ایک ہو کر گہری اژدہا ناظرین، آزادی کے بعد ہندوستان میں تھیٹر کی دنیا میں ایک سکوت طاری ہو گیا تھا۔ اس سکوت کو کچھ حد تک اپٹا اور پرتھوی تھیٹر نے توڑا۔ اس کے علاوہ شمالی ہندوستان میں اور کوئی ایسا گروپ یا تنظیم نظر نہیں آ رہی تھی جو اس کارواں کو آگے بڑھائے۔ ایسے میں کچھ تعلیمی اداروں نے اس جانب قدم بڑھایا۔ دہلی میں تو پھر بھی 50 کی دہائی میں سنگیت ناٹک اکادمی اور پھر نیشنل اسکول آف ڈرامہ نے کام کرنا شروع کر دیا، لیکن دوسرے مقام کو یہ میسر نہ تھا۔ ایسے میں امیچر ڈرامہ گروپ نے مورچہ سنبھالا۔ ان گروپس میں اول تو غیر ملکی ڈراموں کے ترجمے پیش کیے گئے، اس کے بعد اردو میں تبازات ڈراموں کو بھی پیش کیا گیا۔ آزادی کے بعد کھیلے جانے والے ڈراموں کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ 60 کی دہائی میں ہندوستان میں غیر ممالک سے کئی طرز کے تھیٹر آئے۔ ان میں بریخت کے اپیکس تھیٹر اور بیکٹ کے ایبسرڈ تھیٹر، جسے اردو میں لایانی ڈرامے کا نام دیا گیا، نے زیادہ متاثر کیا۔ ہندوستان کی دوسری ترقی یافتہ زبانوں کی طرح اردو میں بھی یہ تجربہ بڑے پیمانے پر کیا گیا۔ حبیب تنویر نے بریخت کو اپناتے ہوئے آگرہ بازار لکھا، تو زاہدہ زیدی اور دوسرے بہت سے ڈرامہ نگاروں نے نئے ڈرامے تخلیق کیے۔ خواجہ احمد عباس، بھیشم سہنی، راجندر سنگھ بیدی، اپیندر ناتھ اشک، شیلا بھاٹیا، جے این کوشل، عصمت چغتائی اور ان جیسے دوسرے بہت سے ڈرامہ نگاروں کے ڈرامے عوام کے درمیان پیش ہو کر ان کے ذہن کو جھنجھوڑنے کے ساتھ ساتھ ان کے ذہن میں محفوظ بھی ہو رہے تھے۔ جب میں نے عصمت آپا کی یہ 3 کہانیاں کرنے کا فیصلہ کیا تو رتنا تک، جو میرے ہر کوشش کو سپورٹ کرتی ہے، اس تک نے کہا کہ مت کرو، کوئی نہیں آئے گا دیکھنے۔ تو میں نے کہا مجھے پرواہ نہیں ہے اس بات کی، میں یہ کرنا چاہتا ہوں۔ اور 13 سال ہو گئے ہیں آج، میرے خیال سے 300 پرفارمنسز ہم کر چکے ہیں اس کے، نہ صرف ہندوستان میں، پاکستان میں بھی، انگلینڈ میں بھی، امریکہ میں بھی، کینیڈا میں بھی، جرمنی میں بھی، ہالینڈ میں بھی، جہاں کوئی ایک زبان، ایک لفظ اردو کی نہیں سمجھتا۔ سب ٹائٹلز کے ساتھ کیے ہم نے، اور ہمارا سب سے کامیاب پروڈکشن رہا ہے، لاگت سب سے کم لگی ہے اور اس کی وجہ سے ہمارا تھیٹر زندہ رہا ہے۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں عصمت آپا کی دعائیں ہیں ہمارے ساتھ۔ وہی آڈینس ہے جو ہمارے شیکسپیئر کے ناٹک یا سیمیول بیکٹ کے ناٹک یا برنارڈ شاء کے ناٹک یا چیکوف کے ناٹک دیکھنے آتی ہے، کالج گوئنگ آڈینس۔ ہمیں بڑی خوشی ہے اس بات کی۔ مجھے ایسا لگا تھا کہ شاید 5-10 پرفارمنسز ہو جائیں گے اس کے، کیونکہ اردو سمجھنے والے ہیں کتنے، لیکن میں اس کو بدلنا نہیں چاہتا۔ جس زبان میں عصمت آپا نے لکھی ہے وہی زبان ہم بولیں گے۔ اور دیکھ لیجئے 300 شو ہو چکے ہیں، ابھی بھی ڈیمانڈ ہے اس کا۔ یہ پیش کیے گئے اکثر ڈرامے فن کے لحاظ سے بہت معیاری نہیں تھے۔ اکثر ڈرامہ نگاروں نے صرف تجربہ کرنے کے لیے لکھ تو لیا، لیکن اس کی پیشکش بہت کمزور رہی۔ ہمارے زیادہ تر ڈرامہ نگار تھیٹر میں ہو رہے تجربات سے ناواقف رہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان ڈراموں میں تجربات کم ہی دکھتے ہیں۔ حالانکہ ایپک تھیٹر اور لایانی تھیٹر کا دور کم و بیش 80 تک خوب چلا۔ اس کے بعد اس کی رونق مان پڑنے لگی۔ بریخت کا ایپک تھیٹر تو کئی سطح پر تجرباتی ثابت ہوا، اور چونکہ یہ عوام سے براہ راست جڑا تھا اس لیے یہ چل پڑا، لیکن لایانی تھیٹر آگے نہیں بڑھا۔ 1980 کے بعد ڈرامہ نگاروں اور ڈراموں پر نظر ڈالتے ہیں تو پاتے ہیں کہ اس دور میں ڈرامے نے نئی کروٹ لی، اور کئی ایسے ڈرامہ نگار ابھر کر منظر عام پر آئے
جن کا نام نہ صرف اردو ڈرامہ بلکہ ہندوستان کے نمائندہ ڈرامہ نگاروں میں شمار ہونے لگا۔ اس میں ساگر سرحدی، جاوید صدیقی، نادرہ ظہیر، کمال احمد، ظہیر انور، ریوتی شرن شرما، جین کوشل وغیرہ اہمیت کے حامل ہیں۔ 80 کی دہائی اسٹیج کی دنیا میں انقلاب کا زمانہ ہے۔ اب اسٹیج کے لیے طرح طرح کی لائٹیں آ گئیں، روشنی کے استعمال میں نئی جہات سامنے آئیں۔ اب اسٹیج پر بڑے بڑے سیٹ کھڑے کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، یعنی علامتی اسٹیج کا استعمال زیادہ بہتر طور پر کیا جانے لگا۔ اس طرح ڈرامے کا پروڈکشن کاسٹ پہلے کی بنسبت کم ہونے لگا۔ اس زمانے میں بہت سے ڈرامہ گروپ منظر عام پر آئے۔ ہمارے دیش بہت عظیم ہے، ان کی بھلائی کے خاطر ہمیں لڑنا چاہیے، ہمیں آپس میں صلح کر لینی چاہیے۔ اسی زمانے میں سب سے زیادہ تعداد میں ڈرامے پیش کیے جانے کا سلسلہ شروع ہوا۔ تجربات بھی خوب ہوئے اور معیاری ڈرامے بھی منظر عام پر آئے۔ دل کا کیا رنگ کروں، خونے جگر ہونے تک۔ کیوں؟ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ زیادہ ورزش کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایسا کیا کیا ہے میں نے؟ ایسا کیا کیا ہے؟ یہ لمبا چوڑا دسترخوان تمہارے آرام کا ثبوت ہے نا۔ 2 دن پہلے ہی غسل صحت کیا ہے، اگر پھر طبیعت ناساز ہو گئی تو؟ یقین جانو شیری، مجھے ذرا بھی تھکان نہیں لگ رہی ہے، سچ کہہ رہی ہوں۔ کیا کر سکتی؟ جھوٹی کا سمجھ تھا، وہ شام بس دیوانے غالب کی ہی کاپی نگاری کرتی رہتی ہو۔ کہاں؟ ہر بار یہ عہد کرتی ہوں کہ آج ایک جز پورا کرنا ہی ہے، پر جب لکھنے بیٹھتی ہوں تو ہر بار کوئی نہ کوئی ایسا شعر آ جاتا ہے جس میں خود کو ہی برعکس پاتی۔ کبھی اس سائنائے الفاظ میں وہ شکنے زلفیں عنبری سلجھاتے ہیں تو کبھی چشمے سرما سا کے طلبگار ہوتے، گاہ تیرے نیم کش کا شکوہ کرتے ہیں تو گاہ انگشتے ہلائی کا تصور۔ گویا یہ احساس شاعر نہیں، میری اپنی زندگی کی بھی جیتی جاگتی خطرن ہے۔ کیوں جناب؟ لوگوں کی ادبی اور ذاتی زندگی میں اتنا گھوٹالا کیوں ہوتا ہے؟ ایک طرف تو آپ فرماتے ہیں بندگی میں بھی وہ آزاد و خودی ہے کہ ہم الٹے پھرائے در کعبہ، اگر وہاں نہ ہوا تب پھر یہ دستک پہ دستک، دستک پہ دستک، دستک پہ۔ بلا شک لوٹ جاتا اگر دروازہ کسی اور کا، پھر ملاقات، منت و خوشامد اور قلم نوازی، حکام کے واسطے عرضیاں اور دولت مند کی نظروں میں قصیدے۔ تو امام ضامن علیہ السلام کا یہ جو روپیہ ہے نا، میں اپنے ہاتھ سے ہی کھولوں گی۔ شکریہ۔ کیا ہم دوبارہ ملیں گے؟ ہاں ملیں گے، ضرور ملیں گے۔ کہاں کا شاعر، کیسا شاعر؟ قید حیات ایک اس طرح کی اسکرپٹ ہے جسے ہر کوئی کرنے میں تھوڑا جھجکتا ہے، کیونکہ اس کی جو بناوٹ ہے، جس طریقے سے انہوں نے اس کے سین کو، پلاٹس کو، ڈائلاگس کو فریم کیا ہے، وہ آج کل کمی ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ کئی ہیں، لیکن یہ ناٹک اپنے آپ میں ایک کالجئی ہے، کلاسک ہے، اور ایک ایسے فنکار، ایک ایسے اردو کے مشہور شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب کی زندگی کے ارد گرد گھومتا ہے، جو کبھی بھی میرے خیال سے ڈیڈ نہیں ہو سکتے، ہمیشہ ریلیونٹ ہیں۔ ان کی پوئٹری، ان کے کلام اس طرح سے انہوں نے لکھے ہیں کہ ہر موضوع پر وہ ٹھیک بیٹھتے ہیں، اس لیے جب تک ان کے کلام ہے تب تک یہ ناٹک زندہ رہے گا اور ہوتا رہے گا۔ اردو کا جس طرح سے ایک ثقیل اور خوبصورت استعمال لیکھک ناٹککار سریندر ورما جی نے کیا ہے، وہ قابل تعریف ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ میں خود حیران تھی کہ مطلب اس طرح کا ناٹک انہوں نے لکھا، اور اپنے
तरह का एक यूनिक प्रयोग था, एक यूनिक एक्सपेरिमेंट था, और जो कि बहुत कामयाब है। काश किस तरह के नाटक और लिखे जाएं और इस तरह के नाटक और स्टेज पे प्रस्तुत किए जाएं। उर्दू के लिए तो ये एक भलाई होगी ही, साथ में हिंदुस्तान में गंगा जमनी जो तहज़ीब है उसके फ़रोग़ के लिए भी ये एक अहम कदम होगा। कैसे बतलाऊं कि तुम मेरे वास्ते क्या बन गए हो। हलावत के ऐसे घूंट मेरे खुश्क होठों ने कभी नहीं भरे थे, कभी नहीं जाना था। इसी ज़माने में उर्दू ड्रामे की तनकीद पर भी काम हुआ। यही वजह है कि हर शख्स को ड्रामा निगार कहलाने का शौक़ पैदा हुआ। इस शौक़ में लोग ड्रामे तो लिखने लगे, लेकिन स्टेज से दूर ही रहे। 90 की दहाई में हिंदुस्तान में आलमकारी का सिलसिला शुरू हुआ। बाजार ने हर मैदान में अपने पंजे गाड़ने शुरू किए। अचानक पैसों की बहुतात हो गई और छोटे छोटे ग्रुप के पास गोया सहूलियत चल कर आने लगी। इसमें मैच्योर क्या, इमैच्योर क्या, सब बहती गंगा में हाथ धोने लगे। यही वजह है कि अब ड्रामे खासी तादाद में पेश होने लगे, लेकिन इसका मेयार न सिर्फ गिरता नजर आया, बल्कि ड्रामे से कंटेंट गायब सा दिखाई देने लगा। तजुर्बे के नाम पर कुछ भी किया जाने लगा। रोशनी, लिबास, मेकअप और दूसरे लवाजमात पर तवज्जो दी जाने लगी। अगर काम नहीं होता तो अदाकार और ड्रामे के कंटेंट पर। यही वो जमाना है जब फिल्मों का असर थिएटर पर होने लगा। हम सब जानते हैं कि फिल्मों के इब्तिदाई जमाने में थिएटर का असर फिल्मों पर था, लिहाजा थिएटर में वो तमाम अनासिर दाखिल हो गए जो फिल्मों को मकबूल बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते रहे हैं। मॉडर्न उर्दू थिएटर में शुरुआत तो आगा हशर कश्मीरी से होती है, और आगा हशर कश्मीरी को अगर आप एक तरह से देखें तो हिंदी सिनेमा की डीएनए में भी आगा हशर कश्मीरी आपको मिलेंगे, और पारसी थिएटर मिलेगा, और उर्दू ज़बान मिलेगी। आज जो बात होती है कि सिनेमा ने उर्दू को ज़िंदा रखा, वो इसलिए ज़िंदा रखा कि उसके डीएनए में है, उससे आप निकाल नहीं सकते उर्दू को, आप उसकी जीन्स में रहे। तो वो जीन्स हिंदी फिल्म की नहीं बदल सकती, बिकॉज उसका नाम बेशक आप जो दे दें, हिंदी दे दें, सेंसर सर्टिफिकेट आपका हिंदी में हो, लेकिन उर्दू उसमें शामिल है, क्योंकि वो उसके एक्सप्रेशन के साथ जुड़ी हुई है। गानों में, डायलॉग्स में, अंदाज़े बयां में, पूरा जो एक सोच है वो उस तहजीब से जुड़ी है जिससे उर्दू पैदा हुई है। एंड उर्दू इज़ व्हाट, उर्दू है तो लश्करी ज़बान, हमारी आम आदमी की आपस में एक दूसरे से बात करने के लिए जो ज़बान तैयार हुई थी वो उर्दू थी। देख, जाके बाहर मैनेजर से 30,000 रुपए ले ले। बाहर से क्यों? मैं तो तुझसे ही लूंगा। बाहर मैनेजर के पास है, वहां से जाके ले। मैं तुझसे लूंगा। हाँ? ये पकड़, चेक पकड़। और यहाँ से जल्दी से दफा हो जाओ। कहाँ जाओ? जहाँ जाना जा, भाड़ में जा। अच्छा, जाता हूँ, लेकिन हफ्ते में एक मर्तबा शक्ल जरूर दिखाऊंगा। अबे हफ्ते में क्या, साल में भी एक मर्तबा नहीं। अच्छा बाबा, सलाम ले, सलाम। दूर दफान हो नाफरजान। सलाम बेटा गंगाराम। अबे जा। खतरनाक आदमी, कभी ना कभी मुझे जरूर लटकवा देगा। जब मैं मुफलिस था तो अमीरजादों की हालत पर रश करता था। आज अमीर हूँ मगर फकीर से भी बदतर। किस कदर नज़ारे दुनिया भी इबरतनाक है। हर बशर को दौलतो जाहो हशम की ताक है। वो समझता है जिसे एहसास है, इदराक है। चैन जब हासिल नहीं दिल को तो दौलत खाक है। ये मस्जिद है गरीब परवर। कभी रही होगी मस्जिद, अब तो यहाँ चमगादड़ें अजान देती हैं और अबाबीलें नमाज अदा करती हैं। अल्लाह, कभी की दी हुई अजानों की सदा आज भी यहाँ गूंजती है। यहाँ रहकर दिल को बड़ा सुकून मिलता है, रूह को तस्कीन होती है। बाबा, मस्जिद अल्लाह के घर को कहते हैं, इसे वीराना कहें तो बेहतर होगा। अल्लाह, ये मस्जिद अल्लाह का घर था, उसकी शान का मजहर सबसे यादगार बाकी है। तो क्या करो यहाँ पे रोजा नमाज, तुम तो औंगते रहते हो। अल्लाह, अजान की आवाजें सुनकर
लब्बैक कहने वाले ही बाकी न रहे। तो इसमें हम क्या करें? वो आप क्या करेंगे? खुदा का खौफ खाइए और ऐसी बातें ना कीजिए। तमाम यहाँ बात पर आप मेज पर खड़े हो जाते हैं। हम तो बस इतना कह रहे थे कि खुदा का खौफ खाइए। आप तो लगे बजा फरमाने। मियाँ, अल्लाह ने अपने बंदे को फेल पर अख्तियार दिया है, निपट लेंगे अपनी अपनी आखिरत में। आप कौन होते हैं? नसीहत और फजीयत करने वाले। और हाँ, जुलाहे का गुस्सा और दाढ़ी पे उतारा जा रहा है। हम ही मिले थे आपको बीवी का नजला उतारने के लिए। बीवी का नजला? क्या मायने? आप आए होंगे बीवी से लड़के? सुबह से तो आप लड़ रहे हैं। मौजूदा दौर में उर्दू थिएटर खासी तादाद में खेले जा रहे हैं, लेकिन इन्हें एक बड़े मसले का सामना करना पड़ रहा है, और वो मसला है नाज़रीन का। न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे हिंदुस्तान में उर्दू ड्रामे मुसलसल पेश किए जा रहे हैं, लेकिन उन्हें नाज़रीन वही मिलते हैं जो आम थिएटर में दिखते हैं। यानी थिएटर उर्दू का हो या हिंदी का या फिर किसी भी इलाकाई ज़बान का, नाज़रीन वही होंगे जिनमें उर्दू के नाज़रीन नहीं मिलेंगे। ऐसे में उर्दू ड्रामे खेले जाने वाले फ़नकारों का हौसला टूटता है, उनको तवानाई नहीं मिलती। इसके बावजूद मौजूदा दौर में बहुत से उर्दू ड्रामा निगार न सिर्फ खेले जाने वाले ड्रामे लिख रहे हैं, बल्कि वो स्टेज भी हो रहे हैं। शाहिद अनवर, अनीस आज़मी, असलम परवेज़, अज़हर आलम, एम सईद आलम, नादिरा ज़हीर, सलीम आरिफ वगैरह मुसलसल उर्दू ड्रामे के फ़रोग़ के लिए कोशां हैं और अमली तौर पर सरगर्म हैं। तंज और मिज़ाह ने अदब में बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं। जो बात सीधे तरीके से कहने में बहुत असर नहीं करती, तंज और मिज़ाह के पैराए में ज़्यादा मुतासिर कुन होती है। ड्रामे में भी इससे बढ़ चढ़कर काम लिए गए हैं। इसके बाद तराजिम पर मुश्तमिल तंजिया और मिज़ाहिया थिएटर ने हिंदुस्तान में जदीद थिएटर की बुनियाद को मजबूत किया। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं उर्दू ज़बान के लिए कुछ कर सकूं, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत, बड़ी बेहतरीन ज़बान है। और मेरा मानना ये है कि जितने एक्सप्रेशंस उर्दू ज़बान में हैं, शायद ही किसी और लैंग्वेज में होंगे, कि हर चीज़ की बारीकी का एक लफ्ज़ है उसमें। तो इट्स अ वेरी एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं एक और अच्छा उर्दू प्ले करूँ, ताकि इस ज़बान को हम लोग अलाइव रखें, ज़िंदा रखें। बिकॉज़ आज के ज़माने में तो आप देख रहे हैं जिन जो हालात चल रहे हैं, ज़बान की कोई मतलब नोबडी गिव्स एनीथिंग फॉर द लैंग्वेज। ज़बान की कोई कदर नहीं करता, ज़बान की कोई इज़्ज़त नहीं करता, विच इज़ अ रॉन्ग थिंग। मैं समझता हूँ कि उर्दू ज़बान के लिए हम सबको एक एफ़र्ट करना चाहिए और इस ज़बान को ज़िंदा रखना चाहिए। जदीद ड्रामे ने हिंदुस्तानी ड्रामे को एक जानिब आगे बढ़ाया तो दूसरी जानिब आवाम के जहन को तब्दील किया। पहले थिएटर में नाजरीन ड्रामा देखने आया करते थे। खालिस तफरीह की गरज से तैयार किए गए ड्रामे की बहुतात ने थिएटर को मीटिंग के मरकज़ में तब्दील कर दिया। ऐसा नहीं है कि पहले मज़ाहिया ड्रामे नहीं खेले जाते थे। आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में मज़ाहिया ड्रामे खूब खेले गए, यहाँ तक कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भी मुसलसल खेले जाते थे। लेकिन उन ड्रामों में तफरीह के बजाय तंज का उन्सुर गालिब रहता था, और बाज़ औक़ात मज़ाहिया ड्रामे देखते हुए नाजरीन की आंखें गीली हो जाती थीं, और जब वो थिएटर से बाहर निकलते थे तो कुछ सबक लेकर लौटते थे कि ये नहीं करना है। उर्दू के स्टेज शुदा ड्रामे की फहरिस्त देखने से अंदाजा होता है कि इसे खेलने वाले हिदायतकारों और फनकारों में 90% ऐसे हैं जो उर्दू रस्म ख़त नहीं जानते या उर्दू नहीं जानते। इसके बावजूद उर्दू ड्रामे मुसलसल पेश करते हैं। कहानियों और नॉवेलों को स्टेज पर पेश करने वाले भी उर्दू न जानने वाले ही होते हैं। पिछले दिनों जो बेहतरीन उर्दू ड्रामे स्टेज हुए, उनमें उर्दू रस्म ख़त जानने वाले के साथ साथ उर्दू रस्म ख़त न जानने वाले ड्रामा निगार भी शामिल हैं।
हम एक ग्रुप चला रहे थे, उसमें जितने शोज़ जहाँ से मिल जाना संभव था तो सारी टीम को जोड़े रखना। देखिए ना, उर्दू हिंदी ही की बात क्या करें, थिएटर के लिए एक्टर का जुटे रहना, थिएटर में एक्टर के लिए रोटी पानी का इंतज़ाम होना इस पूरे हिंदुस्तान में, पूरे समाज में मुश्किल है। थोड़ा बहुत जो बंगला, मराठी या कन्नड़ वगैरह में हो भी जाता है तो भी पूरी तरह से नहीं, क्योंकि वे लोग टीवी और सिनेमा पर डिपेंड कर रहे हैं और हम लोग इस तरफ कोई कदम नहीं उठा रहे। और बड़ी शर्म की बात है कि उर्दू जैसी ज़बान में, जिसने हमें एक नई पहचान दी थी ड्रामे के लिए और अपने अदब और तमद्दुन के लिए, वो उसमें तो बिल्कुल ही जगह ही नहीं है। क्या करें? मेरा कहना यह है, क्योंकि इस्मत आपा ने खुद कुछ अंग्रेज़ी के लफ्ज़ जो कॉमन प्लेस हैं हमारी ज़बान में, कुछ हिंदी के लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, जैसे विवाह, जैसे कि एडजस्ट, जैसे कि कंप्लेन, इस तरह के लफ्ज़ जो हर एक समझता है। तो उन्हें कहीं इस बात की स्नॉबिशनेस नहीं थी कि मैं बड़ी खालिस ज़बान लिख रही हूँ और यही ज़बान सही है। उन्हें उस ज़बान से वाक़फ़ियत थी और रवानी थी लिखने में और बोलने में, इसलिए वो इस ज़बान को इस्तेमाल करती थी। और मैं बार बार एम्फसाइज़ करता हूँ इस बात को कि ये हिंदुस्तानी ज़बान है, उर्दू नहीं है, ना हिंदी है, क्योंकि इन दोनों ज़बान का मिश्रण ही आइडियल है मेरे ख़्याल से। उसी तरह विंग्स कल्चरल सोसाइटी करके एक थिएटर ग्रुप है, उसके तारिक उसका निर्देशक है। वो भी हर साल 1 या 2 नया प्रस्तुतियाँ चलते हैं और उर्दू एकेडमी वाले हर साल गिने चुने 10-15 नाटक को एक उत्सव के रूप में आप भी हर साल करते हैं। कोई भी आदमी जो सचमुच थिएटर का हमदर्द होता है और जो थिएटर को समझता है, वो ये जानता है कि ये एक ऐसी नदी होती है जो अपना रास्ता खुद बनाती है। उसको आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, डायरेक्शन नहीं दे सकते। नाज़रीन, हमने देखा कि उर्दू ड्रामा अपने 160 बरसों के सफ़र में किस नशेब व फराज से गुज़रा। आज़ादी से कब्ल हिंदुस्तानी थिएटर का मतलब उर्दू थिएटर ही था और आज़ादी के बाद भी एक अरसे तक उर्दू ड्रामे ने ही हिंदुस्तानी ड्रामे की नुमाइंदगी की। सरकारी और गैर सरकारी दोनों सतह पर उर्दू ड्रामों ने नाज़रीन को महसूस करने के साथ साथ उनकी रहनुमाई की है और आज भी कर रहा है। गैर मुल्की ड्रामों में तंज़िया व मज़ाहिया ड्रामों के जितने अच्छे तर्जुमे उर्दू में हुए हैं, किसी दूसरी हिंदुस्तानी ज़बान में देखने को नहीं मिलते। दरमियान में कुछ दिनों का वक्फा उर्दू ड्रामों में ज़रूर आया, लेकिन इसके बाद एक बार फिर संभाला लिया और अब सूरत हाल ये है कि हिंदुस्तान का कोई भी ड्रामा फेस्टिवल उर्दू ड्रामे के बगैर मुकम्मल नहीं होता। नाज़रीन, आपने उर्दू थिएटर के सफ़र में हमारा भरपूर साथ दिया। हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं। फ़िलहाल अपना सफ़र यहीं ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।